میں ایک دفعہ جاپان گیا اور وہ ہونڈا فیکٹری تھی. میں جب گزر رہا تھا تو وہاں او کی آواز آئی. تو میں نے کہا یہ کیا معاملہ ہے. پھر میں نے جو ہمارے ہوش تھے میں نے لگا جب پوچھنے میں چپ ہو گیا. پھر میں آگے گیا پھر 26ویں ترمیم کر کے جب اپنے آزاد عدلیہ کو ختم کر دیا تو ہمیں بس کہہ دینا چاہیے آزاد عدلیہ ختم. جعلی مینڈیٹ پر آپ وزیر اعظم بن گئے. آپ نے سپریم کورٹ کا حکم نہیں مانا اور مخصوص نشستیں نہیں دیں. آپ نے مینڈیٹ قتل کیا. آپ نے ووٹ کی عزت نیلام کی. آپ نے ریکارڈ جعلی مقدمے ریکارڈ جعلی پرچے درج کیے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف. آپ نے تحریک انصاف کو توڑ دیا, 3 ٹکڑوں میں کر دیا. السلام علیکم ناظرین اکرام. شہباز شریف نے خطاب کے دوران ایک فنی کریکٹر پیش کیا جس پر پوری دنیا میں پاکستان پر جگ گسائی ہوئی کہ یہ پاکستان کا وزیر اعظم ہے جو اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے. اس ویڈیو پر باقی لوگ تو لطف اندوز ہوتے رہے مگر ارشاد بٹی نے شہباز شریف اور نون لیگ والوں کی ایسی دھلائی کی کہ یہ مدعو یاد رکھیں گے. ارشاد بٹی نے آج حکومت کو بالکل ننگا کر دیا. ویڈیو پوری دیکھنا اور کمنٹ باکس میں بتانا کہ ارشاد بٹی نے صحیح صافی ہونے کا رول ادا کیا یا کہ نہیں. تو آئیے ویڈیو دیکھتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے یہ شہباز شریف صاحب کا ایک ویڈیو کلپ ہے جاپان کے دورے کا, وہ بتا رہے ہیں. اور اس سے پہلے ایک ویڈیو کلپ میں انہوں نے بتایا تھا کہ یہ دورہ انہوں نے 80 کی دہائی میں کیا تھا. وہ جاپان گئے تھے اور جاپان میں جاپان والوں نے ان کے میزبانوں نے انہیں ایک فیکٹری کا وزٹ کروایا, گاڑیوں کی فیکٹری کا. اور وہ کیا بتا رہے ہیں پہلے سنیے شہباز شریف صاحب کا یہ ویڈیو کلپ. دیکھیے جاپان, میں ایک دفعہ جاپان گیا اور وہ ہونڈا فیکٹری تھی. میں جب گزر رہا تھا تو وہاں او کی آواز آئی. تو میں نے کہا یہ کیا معاملہ ہے. پھر میں نے جو ہمارے ہوش تھے میں نے لگا جب پوچھنے میں چپ ہو گیا. پھر میں آگے گیا پھر جب تیسری مرتبہ او ہوا تو مجھ سے رہا نہ گیا. میں نے کہا یہ وہ ڈائریکٹر تھا, میں نے کہا کیا ہو رہا ہے. اس نے کہا جی یہ ورکرز ہیں احتجاج کر رہے ہیں. اندازہ کریں کام نہیں رکا, پروڈکشن جاری ہے مگر اپنا احتجاج انہوں نے ریکارڈ کروایا او کر کے. یہاں پر تو جناب اسلام آباد پر اپنا لشکر کشی ہو جاتی ہے. شہباز شریف صاحب بتا رہے ہیں کہ وہ گاڑیوں کی فیکٹری کے وزٹ پر تھے. تو وہ وزٹ کر رہے تھے تو اچانک ایک آواز آئی پھر تھوڑی دیر وہ آگے چلے یعنی چند قدم آگے بڑھے تو پھر آواز آئی حضرت میں مجھے یہ کرنا پڑ رہا ہے. ظاہر شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں, جب انہوں نے کر دیا ہے تو میں کون ہوتا ہوں. کہتے ہیں پھر جب تیسری دفعہ میں تھوڑا سا آگے بڑھا تو پھر آواز آئی تو میں بڑا حیران ہوا. میں نے میزبانوں سے پوچھا کہ یہ کیوں آ رہی ہے آواز. تو میزبانوں نے کہا کہ یہ فیکٹری ورکرز کی آواز ہے اور وہ احتجاج کر رہے ہیں کسی بات پر, کسی بھی بات پر احتجاج کر رہے ہیں اور یہ آواز وہ ساتھ نکال رہے ہیں لیکن کام ساتھ کر رہے ہیں. تو شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ قومیں اس طرح نہیں بنتی. دیکھیں جاپان والوں کو کہ وہ احتجاج کر رہے تھے مگر فیکٹری میں کام بھی کر رہے تھے اور وہ اپنا احتجاج بھی ریکارڈ کروا رہے تھے کر کے. اب شہباز شریف صاحب غالباً یہ اپنے ملک کی طرف اشارہ کر رہے تھے. اڑان پاکستان کی تقریب تھی جس سے وہ خطاب فرما رہے تھے پاکستان اب خیر سے اڑے گا, قرضوں میں جکڑا ہوا IMF کا غلام اور 200 خسارہ زدہ ادارے اور اوپر شہباز شریف ہاؤس آف شریف جس نے پنجاب میں راجہ رنجیت سنگھ کے بعد سب سے لمبی حکمرانی کی ہے اور 3 مرتبہ ان کے بھائی وزیر اعظم رہے. اب دوسری مرتبہ وہ ہیں اور دوسری مرتبہ پیپلز پارٹی کے ساتھ وہ شامل اقتدار ہیں. تو شہباز شریف صاحب کا کہنا ہے کہ احتجاج کرنا چاہیے جو میں سمجھاؤں لیکن کام نہیں رکنا چاہیے. ہاں احتجاج آپ ریکارڈ کروائیں کر کے. اب محترم شہباز شریف صاحب کو یہ میں ضرور کہوں گا اور کہنا چاہوں گا کہ جاپان کوئی شک نہیں, وہاں کے جو کلچر ہے کاش وہ جاپان کی ساری آتے, جاپان کے سارے ملک کا کلچر وہ جو ان کا سب کچھ ہے وہ ہمارے یہاں رائج ہو جائے تو کیا بات ہے. ویسے شہباز شریف صاحب تو اور ان کے بڑے بھائی تو اس ملک کو ایشین ٹائیگر بنانا چاہتے تھے, وہ تو خیر ہم تو ایشین بلی بھی نہ بن سکے. لیکن شہباز شریف صاحب بہت اچھی بات ہے, جاپان والے کر کے احتجاج کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ کام بھی کرتے ہیں. لیکن مجھے یہ بتائیے گا کہ جب آپ لمبے پیچھے چھوڑ دیتے ہیں, پیچھے جو کچھ ہے آپ جب ایک صرف واقعہ پیچھے کا میں بیان کروں گا وہ ہے کہ جب آپ نے اور آپ کے بھائی جان کو سپریم کورٹ نے توہین عدالت میں بلایا اور آپ نے لاہور سے پنجاب سے بندے بسوں پر بھر کر آپ اسلام آباد لائے اور آپ نے سپریم کورٹ پر حملہ کروایا اور پھر آپ اعلان فرما رہے تھے کہ ان حملہ آوروں کو کہ قیمے والے نان کھائے بغیر کوئی واپس نہ جائے. تو اب مجھے بتائیے جب آپ سپریم کورٹ پر حملہ کر رہے تھے فزیکل, جب سپریم کورٹ تقسیم کر دیا آپ نے نوٹوں بھرے بریف کیس لے کے رفیق تارڑ مرحوم
साबिक सदर साहब कोयटा गए, तो क्या उस वक्त जजों को करके फिर वापस आके सीटों पर बैठ जाना चाहिए था? और फिर अब जब आपने इमरान खान का मैंडेट चोरी किया तो इमरान खान को जेल में करके फिर कहना था कि चलो जी मैंडेट चोरी हो गया, एंजॉय करें, और मैं करके जेल में बैठा रहता हूँ। और फिर जब आप डील करके पहले जद्दा गए तो कौम को भी करना चाहिए था और फिर काम पे लग जाना चाहिए था। फिर जब आप डील करके आपके भाई मुबैना तौर पर जाली मेडिकल रिपोर्टों पर लंदन गए तो हमें करना चाहिए था मुबैना तौर पर जाली मेडिकल रिपोर्टें, और फिर आगे बढ़ जाना चाहिए था। फिर जब आप डील करके वापस आपके भाईजान आए और तायात नाइली खत्म की, काजी फायज ईसा बड़ी कुर्सी पर बैठे एक छोटे आदमी ने, तो हमें काजी फायज ईसा और आपके भाई की गारंटियों भरी रिस्क फ्री वापसी आपने खुद ही बताया था आप लोगों ने, तो हमें भी करके कबूल कर लेना चाहिए था। 26वें आईनी तरमीम करके जब आपने आज़ाद अदलिया को ख़त्म कर दिया तो हमें बस कह देना चाहिए था आज़ाद अदलिया ख़त्म, जाली मैंडेट पर आप वज़ीर आज़म बन गए, आपने सुप्रीम कोर्ट का हुक्म नहीं माना और मखसूस नशिस्तें नहीं दी, आपने मैंडेट कत्ल किया, आपने वोट की इज्जत नीलाम की, आपने रिकॉर्ड जाली मुकदमे, रिकॉर्ड जाली पर्चे दर्ज किए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ, आपने तहरीक इंसाफ को तोड़ दिया, 3 टुकड़ों में कर दिया, आपने खैर आफियत से आप भुट्टो और ज़िया का मिलाप हो गया, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून इकट्ठी हुकूमत बना बैठी, और खैर से अब आप फार्म 47 के वजीर आज़म हैं, और खैर से वो जरदारी जिनके आपने पेट चीरने थे, जिनको आपने सड़कों पर कराची, लाड़काना, लाहौर की सड़कों पर घसीटना था, और जिनको चौकों पर लटकाना था, जिनको आप जर बाबा कहते थे, जिनको आप अली बाबा चाली चोर कहते थे, उनके साथ आप वज़ीर आज़म हाउस में बैठे गप्पे मार रहे थे, हम ये कह के आगे बढ़ जाते। आपने वोट की इज्जत नीलाम कर दी, आपने आज़ाद अदलिया ख़त्म कर दी, आपने पार्लियामेंट का तकद्दुस ख़त्म कर दिया, आपने जमहूरियत का सवा सत्यानाश कर दिया, आपने अजीबो गरीब इस मुल्क को कर्जों में जकड़ दिया, आपकी 7 नस्लें सवर गई, हमारी 7 नस्लें उजड़ गई, और हम कितनी करके, तो मेरा मतलब 25 करोड़ आवाम यूं ही आपको देखेगी, या आपके भाई को देखे, या आपकी भतीजी को देखे, या आपके बेटों को देखे, तो यूं ही आप सामने आए, जो आप कहें अस्सलाम वालेकुम, हम आगे से कहें वालेकुम अस्सलाम, आप कहें कि क्या हाल है, हम कहें ये आपने मुल्क की निकाल दी, कौम की निकाल दी, आपने कायदे आज़म के पाकिस्तान की निकाल दी, आपने इल्लामा इकबाल के ख्वाब की निकाल दी। अब आप ही करते रहेंगे, यानी हम यही करते रहें और आप जो कर रहे हैं वो करते रहें। आप देखें कि महंगाई है, बेरोजगारी है, गुर्बत है, बिजली और गैस के बिल नहीं दे पाते, आपने वज़ीर आज़म हाउस का बजट बढ़ गया, ऐवान सदर का बजट बढ़ गया, अरकान पार्लियामेंट की मराहत बढ़ गई, जजों की तनख्वाहें बढ़ गई, पंजाब असम्बली के मेंबरान की तनख्वाहें बढ़ गई, मरियम नवाज 3.25 करोड़ का वो उनकी गाड़ी, मर्सिडीज गाड़ी का टायर आ गया, और हम बेरोजगारी और गुर्बत में जकड़े हुए और कर्जों में फंसे हुए, और आपकी 5 बर्रे आज़मों में जायदादें, ये आप एवन फील्ड अपार्टमेंट्स का आप मनी ट्रेल नहीं दे सके, जाली कतरी खत, झूठी ट्रस्ट डीड, कैलबरी फाउंड, और मेरी तो कोई बाहर क्या बैरून मुल्क क्या अंदरून मुल्क कोई जायदाद नहीं मरियम नवाज, और फिर अगले साल ही मरियम नवाज ने 2 अरब के एहसास से खुद ही डिक्लेयर कर दिया, और फिर आपके भाई नवाज शरीफ साहब जिन्होंने झूठी तकरीर की कौमी असम्बली में कि जनाब स्पीकर ये हैं वज़राए जिनसे अपार्टमेंट्स खरीदे, और बाद में कहा ये सियासी बयान है, सुप्रीम कोर्ट में जालसाजी आपने की, इसहाक डार साहब जो आपके बड़े भाई के समधी हैं, उनको IMF ने जुर्माना किया जो मुशर्रफ हुकूमत ने भुगता या भरा, और उस जुर्माने की वजह थी कि झूठे अदाद शुमार IMF के सामने पेश किए। और फिर मजे की बात यह कि आप TT स्कैंडल से बिना केस चलाए, बिना पूरा केस चलाए, बिना पूरे सबूत देखे, बिना पूरे गवाह भुगताए आप उसमें से बरी हो गए, और जिस जज ने बरी किया उसको आपने वजारत इंफॉर्मेशन में इतलात और नशियात में चीफ कमिश्नर इंफॉर्मेशन लगा दिया, और जरदारी साहब का 35 अरब जाली अकाउंट्स मनी लॉन्ड्रिंग, आपने नैब तरामीम करके आल बचाओ माल बचाओ ग्रुप जो सारा खाल बचाओ ग्रुप जो सारा फारिग हो गया, दोबारा नैब तरामीम आपने की कि इमरान खान को फंसाया जाए, आपने इलेक्शन एक्ट में तरमीम कर दी ताकि धांधली ट्रिब्यूनल्स का मक्कू ठपा जाए, आपने इलेक्शन एक्ट में दोबारा तरमीम कर दी ताकि सुप्रीम कोर्ट ने जो आर्डर दिया था मखसूस नशिस्तें तरीके इंसाफ की ने वापस की जाए वो ना दी जा सके, आपने पीका एक्ट नाफिज कर दिया ताकि हम जैसे
डरते ही रहे बोलते हुए। आपने खुसूसी ट्रिब्यूनल बनाने के सोचा कि ताकि हम जैसों को सजाएं दिलवा सकें। आपने VPN आपके मुल्क में गैर शरई हो गया। आप इंटरनेट कभी बंद कर देते हैं, कभी स्लो कर देते हैं। आप एक्स मतलब ट्विटर बंद है, कोई पता नहीं क्यों बंद है। आप खैर से आप और आपके खानदान की सत्ते खैरा और हमारे 14 तबक रोशन। तो ये कितनी मर्तबा कहाँ करें, इस तरह करें कौम को ना कुछ चंद जगह मुतय्यन कर दें, चंद चौक मुतय्यन कर दें, जहां कौम ना जो ही सुबह आए करे आपकी तस्वीरें लगाकर, और फिर दोपहर को आए और फिर शाम को आए तो ये करती है, बल्कि इस कौम का नाम ही रख दें और अपनी पार्टी का भी नाम रखते हैं, मुस्लिम लीग। तो हम ही करते। सर कभी सोचा है कि जो कुछ आपने इस मुल्क में किया है वो जापान में होता तो वो आज ना कर रहे थे, बल्कि वो पूरे सड़कों पर होते और इस तरह का रिएक्शन देते कि जुर्रत ना होती दोबारा किसी को अदलिया खत्म करने की, मैंडेट कत्ल करने की, चादर चार दीवारी के तकद्दुस की पामाली की, बुनियादी इंसानी हकूक की पामाली की, जाली पर्चों की, जाली मुकदमों की, जाली जेलों और हवालातों की, और एक बड़ी पार्टी से सियासी स्पेस छीनने की। यानी आपके भाई लंदन से वापस आके अहल होकर पार्टी के सदर बन गए। इमरान खान नायल होकर जेल में पड़ा है और उस पर 250 के करीब मुकदमे हैं, और उसके आपके भाई मुबैना तौर पर यास्मीन राशिद की सीट लेकर मजे कर रहे हैं, और आपके ख्वाजा असद साहब रिहाना डार साहब की सीट लेकर मजे कर रहे हैं मुबैना तौर पर, और हम मुबैना तौर पर आपको मुबैना वजीर आजम भुगत रहे हैं। तो सर अल्लाह ना करे, बल्कि आप जैसे एक मर्तबा वजीर आजम बन जाए जापान के, तो वो छोड़कर सड़कों पर आ जाएंगे, और कोई जापान का बंदा इधर हमारा वजीर आजम बन जाए कोई 8-10 सालों के लिए, तो यकीन करें हम सड़कों से वापस पर आ जाएंगे। जापान का मुल्क देखें सर, जापान को देखें, उस मुल्क को देखें, उस मुल्क के कानून को देखें, उस मुल्क के लोगों को देखें, उस मुल्क की अखलाकियात को देखें, उस मुल्क की तरक्की को देखें, और उन मुल्क के हुक्मरानों को देखें। हजूर जिस दिन पहली मर्तबा ज़िया-उल हक साहब ने माशाल्लाह लगाया था, जन जिलानी ने आप दोनों भाइयों को इक़्तिदार में वो लाए उंगली पकड़कर, हमारी तो उस दिन ही निकल गई थी। हमने उस वक्त बर वक्त कर लेते तो शायद आज तक ये जो अब वाकई मुल्क की निकल गई यहाँ तक ना पहुंच पाते। तो बहरहाल शहबाज शरीफ साहब, आप अक्सर बड़ी मजे की बातें करते हैं, और कौम जो दुखों में है, परेशानियों में है, और कौम जो जिसके मसाइल इतने ज्यादा हो गए, उनको हंसने का, उनको उनके चेहरे पर मुस्कुराहटें आती हैं, हंसने का मौका मिल जाता है। आपकी मेहरबानी है सर। कभी आप कहते हैं कि मौलाना फजल रहमान ने खास तरफ मुंह करके फूंक मारेंगे मैशत बेहतर हो जाएगी, कभी आप कहते हैं हम तो हैं भिखारी, हमारे पास चॉइस ही कोई नहीं। कभी आप कहते हैं कि ये मैं अपने कपड़े बेचकर आटा सस्ता कर दूंगा, कभी आप कहते हैं, और कभी आप कहते हैं कि इस कौम को मैंने एशियन टाइगर बनाना है, और मैंने पंजाब में वो यूरोपी मुल्कों जैसे अस्पताल बनाए हैं जिनमें ना मेरा, ना मेरे भाईजान, ना मेरी फैमिली का इलाज हो सकता है। आप वहाँ करके पड़े रहे। तो हजूर आपको ये जो है ये इंशाल्लाह मुबारक हो। हम जो जिस में पड़े हमें मुबारक हो, लेकिन कम अज कम 5% जापान का जो निज़ाम है वो इधर नाफिज कर दें, तो यकीन करें, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ पूरी कौम आपको देखकर करेगी और काम करेगी। और दूसरी बात है और आखिरी बात है कि जब आप अपोजिशन में थे तो आप सड़कों पर थे, महंगाई मार्च कर रहे थे। उस वक्त महंगाई मार्च न करते, करके घर में बैठ जाते। और जब आप लॉन्ग मार्च निकालते हैं, वो खा वो बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ हो, खा वो इमरान खान के खिलाफ हो, तो उस वक्त आप ना निकालते बल्कि करके घर बैठ जाते। जब आप कोई आपने 70 जलसे किए इमरान खान के खिलाफ, तो उस वक्त आप जलसों की बजाय कर पे काम पे लगे रहते। और आपको याद है जब पीपल्स पार्टी के दौर में आप ने वापडा और बिजली के खिलाफ मुजाहरे कर रहे थे, एक दिन जूते छोड़कर आपको जाना पड़ा और आप मीनारे पाकिस्तान पर पंखा जलते हुए पाए गए थे। तो उस वक्त भी आप उस एहतजाज करने की बजाय कर लेते, तो आज आपके वक्त भी हम सारे करते। बहरहाल सर जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, आपकी इन्हीं बातों की वजह से हमारा दिल लगा हुआ है। पाकिस्तान जिंदाबाद। और आखिर पे